Welcome to class 12 physics CBSE lecture number 7. Topic total internal reflection. We'll be solving some numerical based on total internal reflection. So the numericals have been taken from NCERT grade 12 physics. Okay, so here learning objective will be to solve numerical based on total internal reflection. So the basic knowledge, in order to solve this sum, you should be aware how to read sine and cosine value from the table. Our total internal reflection, it's total internal reflection, trigonometry, ठीक है, basic of trigonometry ये सब आनी चाहिए. Okay, so here goes the question. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of the water is 1.33. Okay, so ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में भी आ चुका है और instead of 1.33 ये 4/3 भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है. So in order to solve this sum, let us first understand that what will be the view from under the water. Okay, in order to solve this sum, so let us first understand that, then we'll come back to the question. Okay, so in this image, what we can see here is, we can see that, let us say that the critical angle between the interface between the water and the air is 49 degree. Okay, so the critical angle in this case is 49 degree. Okay, and if it goes beyond that, then we will be observing total internal reflection. Okay, so this person, now what I want here is कि आप लोग यहाँ पे imagine करो इस person की जगह पे आप हो and you are observing, तो आपको जो upper view है under the water, when you are viewing the upper part, that is the outside world under the water, when you are observing, आपको जो दुनिया है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है, मतलब it will be almost like a circle. Okay, so here the person you are observing and here the tree you are observing, that means the person, ये person का जो reflection है वो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, और ये reflection जो है इनके आंखों में जा रहा है, तो इसलिए वो person इनको इस तरह से दिखाई देगी. Similarly it goes for tree as well. So जो person को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो ये वाले part दिखाई दे रही है, it's almost like a circle. Okay, so the person will see the outside world compressed into a circle. Okay, मतलब इसे जो under the water जब आप लोग यहाँ पे observe करें, you are under the water and you are observing outside world, तो आपको एक circle जैसा ये दिखाई दे रहा है. Okay, now coming back to the question here. Okay, now coming back to the question here again. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. Okay, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे small bulb is placed at the bottom of the tank, तो यहाँ bottom of the tank में आप अपने आप को imagine कीजिए, ठीक है, और आपको जो observe हो रहा है वो एक circle जैसा observe हो रहा है, ठीक है. तो हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है, और हमें पता है एरिया पर सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. तो लेट अस फर्स्ट राइट व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव. सो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, बल्ब यहाँ पे होगा, ठीक है, जो इमर्ज आउट हो रहा है, द लाइट दैट इज इमर्जिंग, द लाइट फ्रॉम द बल्ब दैट कैन इमर्ज आउट, तो वो पार्ट जो है वो इतना वाला पार्ट है, ठीक है, दैट्स अ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है.
It's in the form of circle. So we know the formula for area of a circle. That is pi r square. So let us write the given first. So the refractive index of water is 1.33. Depth है उसका 80 सेंटीमीटर, that is 0.8 मीटर. और हमें एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो हमें यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें आर फाइंड आउट करना है. ठीक है, आर फाइंड आउट करना है हमें, ए ई या फिर ए एफ फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पता है हमें कि ये एक नॉर्मल है, दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, ये एक एंगल है, दैट इज क्रिटिकल एंगल. ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है. तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक है, मुझे पता है tan क्या होता है, tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट इज r अपॉन h. ठीक है, tan c इज r अपॉन h. मेरे पास sin c का वैल्यू है, sin c is 1 upon mu, that is equal to 1 upon 1.33. ठीक है, हम लोगों ने अभी बताया 1.33 is nothing but 4/3. तो ये ऐसा हो जाएगा, this will be equal to 4/3. ठीक है, ओके. तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाने के बाद वो होगा 3/4. ओके, एंड मुझे tan c का भी रेशियो पता है, tan c इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो tan c हियर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के लिए मैं यहाँ पे एडजेसेंट की जो वैल्यू है वो मैं यूजिंग पाइथागोरस निकाल सकता हूँ. तो यूजिंग पाइथागोरस मुझे जो एडजेसेंट की जो वैल्यू आई है वो है √7. ओके, नाउ मुझे tan c पता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट इज 3 upon √7 which equals r/h. ठीक है, ये भी tan c है, तो दोनों इक्वल हो गया. सो उनका जो रेशियो है वो इक्वल हो गया. सो 3 upon √7 इज इक्वल टू r/h. मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू है, दैट इज 0.8 मीटर. therefore r equals 0.8 into 3 upon √7. ठीक है, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर और पाई का वैल्यू होता है 3.14 into 0.8 into 3/√7 the whole square. Okay, so 0.8 का स्क्वायर है 0.64 into 3 का स्क्वायर होता है 9, √7 का स्क्वायर है 7. so 3.14 into 0.64 into 9/7. so the approximate वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो मिलेगी वो है 2.6 मीटर स्क्वायर. ओके, इसका और एक मेथड भी है जहां पे आप सीधा sin c की जो वैल्यू है, यानी क्रिटिकल एंगल जो है, जो c की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो. ठीक है, वो आप निकाल सकते हो, दैट इज sin c की जो वैल्यू है. मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मेथड ट्राई करो. sin c की जो वैल्यू है वो है 1 upon 1.33 या 3 upon 4, दैट इज 0.75. तो c की जो वैल्यू है मुझे sin इनवर्स 0.75 मिल जाएगा. तो इससे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी. अगर मुझे c मिल जाएगा यानी मुझे एंगल मुझे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एंगल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. एंगल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मैं वहां से वैल्यू निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होगा, अप्रोप्रिएट मेथड होगा जो आप कर सकते हो. ठीक है, और एक वाला जो मेथड है, जो थर्ड मेथड है, वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करनी होगी. यहाँ पे आप क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3/√7 यहाँ पे आप tan की वैल्यू रखोगे. tan की वैल्यू क्या होती है, sin अपॉन cos होता है. ठीक है, सिंस r का वैल्यू स्क्वायर होने वाला है तो इट विल बी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर. सिंस हमारे पास sin की वैल्यू है, हमारे पास sin स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. हमारे पास sin स्क्वायर की वैल्यू है तो हमारे पास cos स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि cos स्क्वायर होता है 1 - sin स्क्वायर. तो ये वाला थर्ड वाला मेथड थोड़ा हार्ड होगा, तो आई विल से सजेस्ट फर्स्ट मेथड
जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। और सेकेंड वाला मेथड जो है वो मेथड विल बी द बेस्ट मेथड, दैट विल आल्सो बी द बेस्ट मेथड। वहां पे आपको जो है डायरेक्टली सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। we'll go very slowly so that all of you can understand this question. Okay, in this question there's a figure already given. It shows a cross section of light pipe made up of glass fiber of refractive index 1.68। मतलब हमें यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है, 1.68। ठीक है, 1.68 हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ओके, इसके अलावा हमें और क्या दिया है, हमें द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। ठीक है, 1.44 मतलब यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है। ठीक है, सो दिस इज इनर कोर, दैट इज आउटर कोर। ठीक है, what is the range of the angle of the incident rays with the axis of the pipe for which total internal reflection inside the pipe take place। ठीक है, अगर मैं इसको एक ऑप्टिकल फाइबर जैसा इमेजिन करूँ तो ये कोर हो गया, अंदर वाला पार्ट कोर हो गया, बाहर वाला पार्ट क्लैडिंग हो गया। ठीक है, तो अंदर वाला पार्ट डेंसर मीडियम हो गया, ये वाला डेंसर मीडियम हो गया, ये वाला रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, और दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप। मतलब मुझे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या जो हमें दिया है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइबर दिया गया है, दैट इज 1.68। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर कवरिंग वो दिया गया है हमें, ठीक है, दैट इज 1.44। ओके, नेक्स्ट, let IC be the critical angle for this interface। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन कर है कि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। ठीक है, sin C is equal to 1 by mu which equals mu2 by mu1 में हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, which is equal 1.44 upon 1.68। इसकी जो आंसर आती है वो है 0.8571। ठीक है, जब मैं इसका इनवर्स निकालता हूँ मुझे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो क्रिटिकल एंगल जो है वो मिलता है 59 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री मिलने से मतलब क्या हो गया कि अगर अगर यहाँ पे एंगल मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पे जो मेरा आई डैश है, ठीक है, ये जो मेरा आई डैश है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। ठीक है, यानी कि जो आई डैश है वो ग्रेटर देन 59 डिग्री हुआ तो मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो आई डैश है, ठीक है, वो होगा greater than 59 degree। So the total interruption take place when I dash is equal to I dash is greater than 59 degree। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है उसका, 59 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल क्या है, ये जो आई है। ठीक है, हमें क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेंज ऑफ आई। ठीक है, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड एंगल आई। ठीक है, और ये जो एंगल आई है
ये एंगल आई है, इसका कुछ रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे एंगल आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, मुझे पता है स्नेल्स लॉ से कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे आर की वैल्यू पता चल जाती है, मुझे अंदर वाला मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सिंस इट्स एयर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। ठीक है, मुझे अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ठीक है, जो 1.6 से दिया है। तो अगर मुझे आर का वैल्यू पता चल गया, मुझे आर का वैल्यू पता चल गया तो मुझे आई का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग ज्योमेट्री कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर? द आंसर इज यस। नाउ सिंस वी नो दैट ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्मल है, दैट इज 90 डिग्री, मतलब ये वाली पार्ट जो है 90 डिग्री है, और ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज आई डैश जो है वो मेरा कहीं ना कहीं 59 डिग्री से बड़ा है। इट्स नॉट इक्वल टू 59 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, 59 डिग्री से बड़ा है। तो यूजिंग इनइक्वालिटी मुझे इसका वैल्यू पता चल जाएगा, जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो मुझे पता चल जाएगा। तो आर मैक्स इज लेस देन 90 डिग्री माइनस IC, which equals 90 डिग्री minus 59 डिग्री, that is equal to 31 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो है मेरा जो R का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो होगा, वो एक्चुअली 31 डिग्री से कम होगा। R मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू वो 31 डिग्री से कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आई डैश दैट इज क्रिटिकल एंगल से जो ज्यादा है, क्योंकि मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है, अगर मैं आई डैश को 60 डिग्री पकड़ लूँ, आई डैश को 60 डिग्री पकड़ लूँ तो मुझे आर जो है वो 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज 31 से कम मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू, क्योंकि जो आई डैश की वैल्यू वो हमेशा 59 से ज्यादा रहनी चाहिए। तो अगर मैं आई डैश को 70 लेता हूँ, आई डैश को 70 लेता हूँ, ठीक है, आई डैश को 70 लेता हूँ, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, आर की वैल्यू हो जाएगी 20। ओके, तो यहाँ पे आर मैक्स का जो वैल्यू हो गया, आर मैक्स का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 31 से कम। ठीक है, तो इससे मैं अभी यूजिंग दिस आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ओके, यूजिंग स्नेल्स लॉ mu2 sin I is equal to mu1 sin R. Now here don't get confused regarding mu2, ये mu2 अलग है और ये वाला mu2 अलग है। ये वाला mu2 जो है वो है एयर वाला, ठीक है, ये वाला जो mu2 है ये है एयर वाला। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई मैक्स जो होगा वो होगा ये वाला। तो इसके साथ जो आई मैक्स होगा वो कौन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे है? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर पे है, तो ये इसका जो वैल्यू होगा एयर वाला वैल्यू होगा। ठीक है, दैट इज 1। ठीक है, एयर का जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो होता है 1। ठीक है, आर मैक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे? v1 वाला क्या होगा पार्ट? होगा 1.68। ओके, तो रेशियो ऑफ साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स विल बी 1.68 अपॉन 1, which will be equal to 1.68 only. Okay, तो साइन आई मैक्स अपॉन साइन 31 degree will be equal to 1.68. So sin I max upon sin 31 degree is equal to 1.68. Okay, so sin 31 degree की जो वैल्यू है वो 0.5150। सो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलता है sin I max का वो है 0.8652, और जब मैं इसका इनवर्स लेता हूँ तो मुझे जो एंगल मिलता है, जो एंगल की जो वैल्यू मिलती है, जो मैक्सिमम एंगल की जो वैल्यू मिलती है इंसिडेंट की, वो होती है 60 डिग्री। ओके, सो जो रेंज है, इसका जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो है 0 to 60 डिग्री। जो आई मैक्स होगी वो है 60 डिग्री। तो इसके अंदर की जो भी एंगल है जिसपे इंसिडेंट गति, ऑफ कोर्स 0
डिग्री नहीं हो सकता, तो जो रेंज होगा वो होगा 0 to 60 डिग्री के बीच की जो रेंज होगी जहाँ पे इंसिडेंट रे जब ये एंगल होगा तो मुझे ओवरऑल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा जब भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेंज बिटवीन 0 to 60 होगा। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आउटर कवरिंग जो है नहीं है। अभी जो आउटर कवरिंग थी 1.44 है, मतलब अभी जो आउटर पार्ट है वो एयर ही है, तो मतलब आउटर पार्ट एयर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी 1। तो डिटो सेम स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट कि अब क्या होगा, अब आंसर में क्या चेंज होगा। ठीक है, व्हाट इज द आंसर if there is no outer covering of the pipe। ओके, तो फिर से सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का 1.6 है, 1.68 है, हम लोग वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एयर का है जो है 1। ठीक है, सेम मेथड करना, लेट आई सी बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस इंटरफेस। ठीक है, sin c equals 1 by mu which equals mu2 by mu1 which equals 1 upon 1.68, इसकी वैल्यू होगी 0.5952। ठीक है, अब मैं वापस इसका इनवर्स ले लूंगा। इसका इनवर्स लेने पे मुझे जो एंगल मिलेगा, ठीक है, वो एंगल होगा मेरा क्रिटिकल एंगल। सी मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल है। मेरा जो क्रिटिकल एंगल है वो है 36.5 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है, मतलब मेरा जो भी आई डैश है, वापस से सिमिलर मेथड कर रहे हैं हम लोग, आई डैश है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिले। इसका मतलब हो गया मेरा जो आई डैश है वो ग्रेटर होना चाहिए 36.5 डिग्री से। ठीक है, सिंस ये 36.5 है, ठीक है, ये 36.5 है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो R max will be 90 minus IC, okay, which will be equal to, that is less than, जिसकी वैल्यू जो होगी लेस देन होगी 53.5 डिग्री। ओके, सो R max की वैल्यू हो जाएगी 53.5 डिग्री। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, again, mu2 is equal to sin R max which equals to mu1 sin R max। ठीक है, so that will be 1.68। R max का वैल्यू मुझे पता है, that is 53.5। तो मैं जब 53.5 साइन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन में, मुझे मिलता है 0.5952, और इन दोनों वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू है क्लोज टू 1 आती है, वेरी क्लोज टू 1 आती है, तो विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल क्योंकि हम लोग 90 डिग्री पे हिट नहीं कर पाएंगे, तो आई मैक्स जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रहेगा फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेंज हो जाएगा इस केस में जब कोई कवरिंग नहीं रहेगी बाहर से, इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज वो हो जाएगा 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 to 90 के बीच में कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो उस केस में मुझे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। आपको समझ में आया हो न्यूमेरिकल्स? अगर कोई भी डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल्स यू कैन आस्क मी।